Let's talk about stereoisomers. Few things before we can start, that we will see coordination, we'll see stereoisomers mostly in 6 ligands or 4 ligand systems only, because other systems we will hardly observe any stereoisomers existing. So we'll only look for 6 ligands or 4 ligand systems only. Okay, let me start with first 4 ligands. That is the coordination number when it is 4. Okay, if the coordination number is 4, we know that I have two options. One is a complex could be square planar, or a complex could be tetrahedral. यही दो ऑप्शन होते हैं बेटा. Either it should be sp3 or dsp2 hybridization. Okay, depending upon whether they are strong field or a weak field, कोई भी हो, ये दोनों ऑप्शंस हमको मिल सकते हैं. सर हमको D3S भी बताया था. D3S D3S ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नहीं आएगा, डोंट वरी, डी ब्लॉक में आएगा. ठीक है, ठीक है. यहाँ पे D3S वाला कोई भी कॉम्प्लेक्स बनने वाला है ही नहीं, सो आप टेंशन मत लो उसका. दैट इज KMnO4, KMnO4, K2Cr2O7, उसका अलग चैप्टर है, वहीं पर करें. ठीक है. Anyways, as much as this chapter is concerned, you would see only DSP2 or sp3 cases. Clear? Obviously, square planar hai. So, if you just recall the requirement of a geometrical isomer and an optical isomer, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ आपको. Whenever we talk about optical isomers, the primary requirement here is no plane of symmetry and no center of symmetry, है ना? That makes a molecule to become chiral, and since it shows chirality, it must be optically active, and we say it is optical isomer. That is a simple terms which we know. Next, geometrical isomers. We say two molecules are geometrical isomers if the distance between the species varies for the same structure. Got it? That is what we will observe. Now, let me tell you one thing. Whenever we talk about tetrahedral, right? Suppose if I talk, there is A, B, C, D. What is the distance between AB का distance, BD का distance, AC का distance, BC का distance, और CD का distance? All of them are equal only, no? Because that is what we assume, that अगर ये एक point molecules है या point species की तरह है, then the distance between these two, or these two, if you consider any of them, the distance between them would be equal. Because the distance between all of them are equal, even if you interchange two of those species, B को A बना दो, A को C बना दो, और उसको exchange कर दो, so the distance is not varying at all, which means in tetrahedral form. So पहले ये note कर लेते हैं. In tetrahedral geometry, we cannot find geometrical isomers. So I think all of you with me on this. So whenever you come across tetrahedral case, do not think, bring it to your mind that यहाँ पे geometrical isomers exist नहीं कर सकते. Correct? Second important notice, in any planar molecule, in any planar complex, or
any complex with plane of symmetry cannot have optical isomers. Okay, so it is like a basic understanding for optical and geometrical isomers. So I hope all of you are following with me. Sorry. Now, if it is square planar, I'll come back to this point here. Do you think optical isomers exist? Optical isomers? No, right? Optical isomers do not exist. But geometrical isomers, maybe. Yes, sir. Geometrical isomers, maybe. हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ नहीं। टेट्राहेड्रल का नहीं समझ में आया। क्या बेटा? आपने क्यों बोला टेट्राहेड्रल में we cannot find geometrical isomers? See, geometrical isomers are those whose distance between any two species is different. Like cis or trans में distance between those two species by which you are defining them as cis and trans are varied, है ना? Distance change होगा तभी हम लोग उसको geometrical isomers कहेंगे ना बेटा? चैतन्य क्लियर है? तो शायद से। See how I'm saying. Suppose. समझ में नहीं आया कि हम क्यों डिस्टेंस डिफरेंट नहीं हो सकता सर, मुझे कोई को वो बताओगे मैं तभी समझ पाऊंगा शायद से। हाँ बेटा वही बता रहा हूँ। Suppose if you have, let's say, A, B, H and H, we say this is trans, or H and H idhar hai, or A, B ऐसे, then we say it is cis, correct? Why do we say these two are geometrical isomers? Just think in that way. तो distance between identical species different हो गया यहाँ पे। Correct. इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में different हो गया। Correct? ये तो स्पेसिफिकली बस सिस एंड ट्रांस के डिफरेंशिएशन के बीच में है ना। अच्छा, अभी इसी में आपने इधर कर दिया, instead of this I keep this as CD here. Okay, so now this has become D and C here, correct? Now tell me what happened between these two distance. It could, you can take any two considering any two species, right? A और B को आपने consider किया, दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना था। ना भी A और B को वही चेक करो तो दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज हो गया। अगर किसी भी दो स्पीशीज के बीच में डिस्टेंस चेंज हो गया मतलब दे आर ज्योमेट्रिकल। आइसोमर जैसे क्लासिफाई होने के लिए कंडीशन थी कि दैट मिनिमम two of them there should be at least two different type of नहीं, that at least two of them should be same and both of them should not be on the same side of the double bond. ये तो एक कंडीशन थी ना सर, यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम इसको सिस एंड ट्रांस के बीच में कैसे कोई भी स्टीरियो आइसोमर में you are not changing the position of the groups, got it? You can only exchange on the same position, like B और C को exchange कर सकते हो उसी कार्बन पे, A और D को change कर सकते हो उसी कार्बन पे। You can't say like this, I can't say C double bond C। बट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे सिस ट्रांस का क्लासिफिकेशन की जो दो कंडीशंस है वो तो फुलफिल नहीं हुई ना सर। देखो cis trans is only one kind of a geometrical isomers। Okay sir, तो आप जो भी बता रहे थे different geometrical isomers but not necessarily cis and trans। No, not necessary। I thought you were also classifying them as cis and trans। Sorry। No, cis and trans is only one type of a classification। Geometrical type in general it is classified as E and Z। Okay, clear beta? Right, let me come here now। So we have understood that geometrical isomerisms may exist in the case of square planar। Similarly, if it is tetrahedral, geometrical isomers will not exist, but optical isomers may exist। ठीक है? So दिमाग में ये ला लो पहले कि 4 ligands या 4 connections होते हैं तो क्या वो स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है, ये देखेंगे। उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसमें ज्योमेट्रिकल होगा या नहीं होगा। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मेक इट लाइक अ टेबल। इफ इट इज स्क्वायर प्लेनर, whether we should look out for geometrical or optical। Okay, if it is square planar, ठीक है,
what are the various combination of ligands I can have, and should I be searching more for geometrical isomers? Should I be searching more for optical isomers? Starting with the first case, Ma4. M is the central metal atom. A are the ligands surrounding it. So if it is square planar, I can expect we have M with 4 A groups like this. Now beta, no matter which group you change, कैसे भी आप change करो, उनके बीच का distance तो change नहीं हो रहा है ना. That's why here geometrical isomers won't be available. Neither optical isomers are available. And optical isomers तो outright वैसे भी हमने reject किया था कि यहाँ पर होंगे नहीं. Second case, if you look at as Ma3B, sorry, if you take A and B, अभी देखो आप B को कहीं पर भी position change कर दो, are you getting any unique distance between B and A? No, right? किसी भी जगह पे B को आप change करो, you would still get the same idea. So therefore we can say यहाँ पर कोई exist नहीं कर रहा है. Clear everybody? Any doubt here? Sir, Yes. so distances दो ही टाइप के है ना, मतलब एक adjacent और diagonal. Say it again. Distances दो ही टाइप के है ना, एक adjacent वाला है और एक diagonal वाला है. ऐसा दो ही Yes, दो ही, यहाँ पे दो ही distance है ना. यहाँ तो ये distance है, यहाँ तो ये distance है. Okay? Yes. इसमें कोई difference नहीं मिल रहा है ना हमको. Next third case देखते हैं. Ma2B2. If it is Ma2B2, M और यहाँ पर A और A, B और B. मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों A और B और B एक दूसरे के सिस की तरह है. Okay? And in case if at all I put this as A यहाँ पर और A यहाँ पर, B और B ऐसे चेंज कर दिया हमने, तो क्या हुआ? Now distance between the B has changed or distance between the A has changed. So you can take any of them as a reference and I can say it would have cis and trans. So C plus T लिखता हूँ, which is two isomers, two geometrical isomers. Optical isomers तो अभी भी नहीं रहेंगे because there is a plane of symmetry. So as long as there is plane of symmetry, no optical isomers will be found, right? Fourth, Ma2BC. M, we have A and B and C. Similarly, A and A here and B and C here. I can't find anything more than these two. Again, I'll have only cis and trans, no optical isomers. Any doubt here in this case? Right, everybody? Next. NABCD. NABCD. It is like 4 different groups we have. So I'll have this as A, B, C, D. I can make A, B, और यहाँ पर D and C. And another one I can make is A, C, B and D. अब ध्यान से देखोगे. So A और C के बीच में distance some x है. This is x distance. Okay. Here A and B के बीच में भी x distance है. But यहाँ पर A और B के बीच में distance change हो चुका. So definitely these two are geometrical isomers. Same way here, AC were like cis, adjacent. But यहाँ पर AC कैसे हो गया? Trans हो गया. एक दूसरे से अलग हो गया. So you can see all these three are different molecules. They don't have same property because their distances are different. Any doubt there? So how many geometrical isomers we have? 3. Now Chaitanya, I won't use the word cis and trans anymore, beta, because we don't know how to categorize cis and trans between them. I can say there are total 3 geometrical isomers only. So, and no optical isomers. Everybody is following that? Yes. Very good. Optical isomers की condition. Say it again. Sir, optical isomers की condition क्या होती है? मैं भूल गया. बता सकते हो क्या है? There should not be any plane of symmetry or center of symmetry. Then their mirror image will be non-superimposable mirror images. We call them as optical isomers. Okay. Next. MAA twice. AA, जब भी ये लिखते, this representation is used for bidentates. So imagine this way.
we have M, okay, A and A and A and A, right? अब ये A एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये A एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, करेक्ट। अभी आप कैसे भी चेंज करो इसको। अच्छा, टेल मी अबाउट दिस, क्या ये वाला एग्जिस्ट करेगा? हमने पहले ए लिख दिया है कि ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है और ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं सर, स्क्वायर प्लेनर रह ही नहीं सकता फिर वो। करेक्ट, फिर वो स्क्वायर रह ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर मेकिंग अ साइक्लिक स्ट्रक्चर जो कि यूजुअली रिंग साइज 4, 5, 6 में होता है या मैक्सिमम 7 में, ठीक है। प्लेनैरिटी तो तब आएगी आपके 10-12 मेंबर्ड कार्बन 10-12 मेंबर्ड रिंग साइज हो, तो तब जाके कहीं एक जगह पे प्लेन आ सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल इन आवर रेगुलर कॉम्प्लेक्सेस। सो आवर थॉट शुड बी ओनली अबाउट 4, 5, 6 मेंबर्ड रिंग। सो 4, 5, 6 मेंबर्ड में तो कहीं पर भी आपको एक बॉन्ड एंगल 180 आ ही नहीं सकता। सो हियर यू आर सीइंग दैट बॉन्ड एंगल इज कमिंग आउट टू बी 180। सो ऐसे ट्रांस वाले केसेस कभी नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मैं लिख के उसको मार्क कर रहा हूं नो, जस्ट टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि यहां पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो हेंस देयर आर नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नो ऑप्टिकल आइसोमर्स इन दिस केस। क्लियर गाइस? नेक्स्ट, if you have MAA dash twice, MAA dash twice, मतलब दोनों, this is also a bidentate, but the bidentate, one connection is from A, one connection is from A dash, A and A dash, तो ये ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से। and same way I can take one more case जहां पर ये A dash बन सकता है, so this could be A dash. So now you can see, if I see with respect to A dash and A dash, they are cis, this A dash and A dash, I have trans. So I can say I have cis plus trans isomers. So total 2 geometrical isomers. Okay. But as long as this is planar, okay, अभी हो सकता है, देखो बेटा, हो सकता है कि यहाँ पर कई chiral center होने की वजह से chirality आ जाए. But as much as with respect to this metal, if you consider that, if you see here, ऐसा एक plane of symmetry मिल रहा है ना, correct? This way I'm getting a plane of symmetry. And similarly, if I put it this way, this is also one plane of symmetry, correct? So plane of symmetry तो अभी भी मिल रहा है हमको, so there is no optical isomers defined in this case. So I hope all of you understood this, right? Any doubt here, friends? No, sir. Very Yes, good. sir. Okay. Now let us talk about, these are all about 4-membered rings, 4-membered four coordination systems with square planar structure. Okay, if it is tetrahedral, so tetrahedral complexes, in case if we have tetrahedral complexes, then when do we see isomers could be formed? Okay, first, tetrahedral, if you have something like nickel, okay, I'm directly shooting with an example, chlorine, bromine, iodine, fluorine, okay, and overall 2 minus, if you have this way, you know, all 4 of them are weak ligands. So nickel would go for sp3 hybridization, which implies it is tetrahedral. So only this is a case where M, A, B, C, D, if you have, and all 4 groups are different. ये तो हमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है, a chiral center is only defined if all 4 groups are different with respect to that chiral center. So here we can say these two are non-superimposable mirror images. So AD, BC, sorry, B and D and C. So you can say, we can say that C here, D here, and structure उल्टा लिखा हमने, ऐसे B, C, D. Yeah. So these two are mirror images of each other. So I can say optical isomers exist.
So that will be two of them. Geometrical isomers do not exist in this case. Why geometrical? Why there are no geometrical, everybody? Why geometrical is not Distance. Same existing? distance. Distance is not changing, so geometrical cannot exist. Another example, I'll take directly with the examples better. Zinc GLY twice. This is another important complex. Zinc C and zinc के कोई भी complexes जो 4 ligands 4 connections दे सकते हैं, that has to be sp3 only, because D completely filled है, so it is a D10 configuration, implies it has to be sp3, implies it has to be tetrahedral structure. Okay, so if you look at that, so we have zinc, हो सकता है एक पीछे जा रहा है, एक कनेक्शन आगे की तरफ आ रहा है, और एक कनेक्शन ऐसा और ऐसा है. Okay, this is how it is. So we have oxygen and nitrogen connection, correct? और GLY is glycinate, ये होता है glycinate का structure. Okay, same way यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कनेक्शन लो, so we will have this as double bond O, इस तरह से होगा, correct? Now if you look at this, because the distance between these groups are same, I can't expect geometrical isomers to exist, but there is no plane of symmetry in any direction, so hence I can say it has optical isomers. So optical isomers 2, geometrical isomers nil. Okay, देखो बेटा, अब ये मत सोचना कि सर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम ग्रुप है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम ग्रुप है, बट उनके बीच में जो किसी तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री आना चाहिए वो तो नहीं आ रहा है ना. इवन इफ यू गो दिस वे आल्सो देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री. यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, आप ऐसे काटने की कोशिश करोगे तो भी कुछ फायदा नहीं होगा, बिकॉज अगेन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में डिफरेंस. Just a minute. Yeah, sorry. So optical isomers are 2. So geometrical isomers does not exist there. Okay. Any doubt, beta, here? Yes, sir. सर जो आप कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो वो वीबीटी से ही निकाल रहे हो ना? VBT से ही, CFT से हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकलता है. तो हम लोग को याद नहीं है तो वैसे ही निकलना पड़ेगा. Yes, yes. ओके. जिंक का तो बड़ा हिंट है बेटा, जिंक के सिर्फ sp3 हो सकता है. अब ये बताओ, जिंक OX ट्वाइस है, ऑक्सिलेट है, ठीक है, तो अभी सिमिलर स्ट्रक्चर है, ऐसे ही स्ट्रक्चर है यहाँ पर. ओके, जैसे मैंने लिखा वैसे ही स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पर यहाँ इधर भी डबल बॉन्ड O है और ये O माइनस के साथ है, तो यहाँ से ये कनेक्शन है, और यहाँ पर भी O है और डबल बॉन्ड O है, ऐसे. ये हो गया ऑक्सिलेट. क्या अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री है एवरीवन? प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? देखो ये 4 ग्रुप्स है, ठीक है, इधर से भी ऑक्सीजन है, इधर से भी ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ये दोनों भी ऑक्सीजन है. तो ऐसे अगर मैं बीच में से ऐसे काट दूंगा, ठीक है, इफ एट ऑल आई कट दिस, कैन यू सी देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा? ये दोनों सेम ही तो है, दोनों सेम ही तो, और डिस्टेंस भी एग्जैक्टली सेम है बीच में से, ठीक है. सो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है.
So therefore geometrical isomers नहीं है, optical isomers नहीं है. Okay. Next. Fourth one. Okay. Next, if you have beryllium, okay, salicylate. Beryllium salicylate काफी फेमस मॉलिक्यूल है जो हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, COO माइनस. एंड ये वाला ग्रुप बेंजीन के साथ ऐसे कनेक्टेड है ट्वाइस. Sorry. Again, imagine a similar situation with beryllium. This time we have beryllium with इस तरीके से है और एक पीछे की तरफ जा रहा है, एक बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे. You have oxygen with C double bond O ऐसे and oxygen फिर ऐसे this one. ठीक. Are you all able to imagine that? कैसे दिख रहा है salicylate? Similarly यहाँ पर देखो C double bond O with oxygen with C double bond O and C double bond O and then oxygen connected with benzene this way. ठीक है. So you can see this is also salicylate. अच्छा, इसमें भी इश्यू यही है ना, एक तरफ C डबल बॉन्ड है और दूसरी तरफ कुछ और ही ग्रुप है, तो आप किसी भी एंगल में इसको चेक करने जाओ तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा. So same is the case here also. There is no plane of symmetry in this case. Hence, geometrical isomers does not exist, but optical isomers, two of them will exist in this case. ये काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है बेटा, इसको याद कर लियो. बेरिलियम सैलिसिलेट. And everybody? Yes. Right. Okay. अगर अभी मैं आपको क्वेश्चन दूं कि नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स लिखो फॉर अ प्लेनर मॉलिक्यूल, तो आप फॉर अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, तो आपको लिखना आना चाहिए. ठीक है. सो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन ऑन दैट. राइट all stereoisomers of platinum Bn twice, okay, Bn twice and बाहर है Cl2, Bn twice. Just like we used to have ethylene diamine, Bn is butylene diamine. Bn क्या होता है बेटा? Butylene diamine. और when you have butylene diamine with platinum as +2 oxidation state, since it is +2 oxidation state, it would prefer to be more of a platinum here prefers to be more of a tetrahedral shape, more than square planar. अब इसके हिस्ट्री में नहीं जाएंगे हम लोग, सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको गिवन रहेगा. This would be given to you whether it is going to be sp3 or whether it is going to be dsp2. Anyways, here consider it is sp3, then see what all things it could be. Okay, sorry मैंने उल्टा लिखा यार. Square planar more than tetrahedral, correct? So now you have to write the stereoisomers for them. So if it is square planar, it has to be dsp2, and if it is tetrahedral, it has to be sp3. ये होगा हमेशा स्क्वायर प्लेनर. ठीक है. वो आपको पता है कि 4D 5D मैंने बताया था सब. When you come to 4D and 5D, everything behaves strong nucleophile. तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, d ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएगा, dsp2 मिल जाएगा. Suppose if it is planar,
सो यहाँ पर प्लैटिनम, मैं एक स्ट्रक्चर लिख के बताता हूँ, बाकी आप इमेजिन करो. इट शुड बी प्लेनर दिस वे. एंड ethylene, just like ethylene diamine, here also it is butylene diamine, so connection is from nitrogen onwards. And we have, अगर इतना ही होता तो इथाइलिन डायमाइन कहते, बट यहाँ पर दो दो मिथाइल ग्रुप है, बिकॉज इट इज ब्यूटाइलिन डायमाइन, राइट? सो नाउ दिस इज द केस. नाउ यू हैव टू गेस हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स वी हैव. ठीक है, तो बताओ कितने हो सकते हैं आंसर, जल्दी. ये रिसेंट ओलंपियाड का क्वेश्चन है. If you try to recall from the above cases what we done, it is like Sir, MAA twice है ना बेटा, MAA twice square planar में. क्या इसमें ज्योमेट्रिकल हो सकते हैं? no, ज्योमेट्रिकल तो नहीं हो सकते. फिर क्या क्या है इधर? आपने अच्छे से ध्यान दिया तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 कायरल सेंटर है कि नहीं? These are all 4 कायरल सेंटर्स ओनली ना. ये वही केस है, मैंने बोला था कि जहाँ पे स्क्वायर प्लेनर है बट स्टीरियोइसोमर्स ज्योमेट्रिकल से नहीं बन रहे हैं. दे आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल एट डिफरेंट कार्बन्स, एट डिफरेंट कार्बन लोकेशंस. सी व्हेन यू हैव 4 कार्बन्स, हो सकता है इसमें से ये चारों मिथाइल ग्रुप्स कैसे कनेक्टेड है उस पर डिपेंड करेगा, राइट? अगर हाँ, सर. चारों के चारों मिथाइल ग्रुप ऊपर है, वो इट इज वन ऑफ द स्टीरियोइसोमर्स, करेक्ट? Now you have to search cis and trans based upon these 4 groups बेटा. ठीक है, सपोज फर्स्ट केस क्या हो सकता है? केस 1 इज all methyl up, all methyl up, that is one case. ठीक है, सारे के सारे up. और Sir, can we try? all, अभी तक नहीं ट्राई किया था. Sir, अभी realize हुआ balance अच्छा अच्छा, is ठीक है ठीक है, करो करो, जल्दी करो. I'll give you 2 minutes, then I'll do it. Ishan, there could be superimposable. They could be superimposable. Tanish, don't put any permutations and combinations. Do it roughly, okay? क्योंकि केमिस्ट्री में कोई भी 10 के ऊपर नहीं आएंगे, आप वहां पे परमुटेशंस रखने मत जाओ. Sir, भेजो total studio. सर अभी लिख के, क्योंकि मेरे पास में तो नहीं हुआ पीएनसी वगैरह, बट लिख के ही करना होता है ना जनरली. लिख के ही करना होता है बेटा, वो कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई मत करो. यस, ओके. सो Sir, ठीक है क्या? 8 होना चाहिए. देखो अच्छा, okay. देखता हूँ. एक मिनट, मैं अभी चेक करता हूँ. एक लास्ट वाला मुझे कंफ्यूजन हो रहा है. पहले मैं सारे लिख लेता हूँ. मैं कैसे करूंगा देख लेना, जिसको नहीं समझ रहा है. व्हाट आई डू, मैं सारे अप या सारे डाउन ले लूंगा, वो तो सेम ही होगा. ऑल अप और ऑल डाउन. सो फर्स्ट केस मैंने लिया ऑल मिथाइल अप और ऑल मिथाइल डाउन. सेकेंड केस इज 1 मिथाइल अप, 1 मिथाइल अप, 1 मिथाइल अप and 3 methyls down, 3 methyl down, which is same as 3 methyl up and 1 methyl down. वो तो सेम ही हो जाएगा. ओके, नाउ इमेजिन ये दोनों मिथाइल अप है, ठीक है, और ये भी अप है और ये डाउन है, ये डाउन है.
तो क्या हम लोग इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते हैं? नहीं सर। इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ऐसे डालने जाओगे तो ये दोनों अलग जगह पे है, ऐसे देखने जाओगे, करेक्ट, तो ये दोनों सेम साइड है बट ये दोनों अलग जगह पे है ना? तो देयरफॉर देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो यहां पर लिख देते हैं नो पीओएस। यहां पर पीओएस है ना, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है फर्स्ट केस में। थर्ड केस में तनिष्क, आर यू फॉलोइंग बेटा? यस सर। गुड। नेक्स्ट केस इज ये वाले दोनों अप, ये वाले दोनों डाउन, ठीक है, ये भी हो सकता है। सो आई गिव द नंबरिंग हियर बेटा। सो आई पुट दिस एज 1 2 3 4। सो आई से 1,2 methyl up, 2 methyl up and 3,4 methyl down, ठीक है। सो इन दैट केस, क्योंकि 1 and 2 ये दोनों अप ये दोनों डाउन है, तो इसमें से बीच में से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, करेक्ट। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री विल एग्जिस्ट हियर, सो देयरफॉर plane of symmetry will exist in this case, and this is same as saying 1 2 methyl down and 3 4 up, वो दोनों सेम ही होंगे, so we don't have to redo that. Next case is 1 comma 3 up, 1 3 methyl up, 1 3 methyl up and 2 4 methyl down, that is down, ठीक है। 1 3 up 2 4 down. If you have 1 3 up and 2 4 down, then these two are on the same side, these two are on the same side, so hence यहां से ऐसे बीच में से एक plane of symmetry आ जाएगा ना। So yes, here also there is a plane of symmetry existing. Last case what we can imagine is that 1 4 is up and 2 3 is down. So 1 4 methyl up and 2 3 methyl 2 3 methyl down. So these two are up and these two are down here. So in that case, can you see any plane of symmetries beta? नहीं सर, पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। Correct. So अभी point of symmetry कैसे है? यहां से आप इधर जा रहे हो तो ऊपर दिख रहा है, यहां पे भी जा रहे हो तो ऊपर ही दिख रहा है ना, तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री किधर हुआ? नहीं हुआ ना। पॉइंट ऑफ सिमेट्री मतलब आपको इनवर्स चाहिए बेटा, इनवर्स होना चाहिए। यस यस यस। करेक्ट। तो यहां पर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे फाइंड करोगे? अभी ऐसे क्रॉस में फाइंड करोगे ना, करेक्ट। अच्छा, आप नहीं प्लेन होगा ऑफ ना सर, वो नहीं होगा, प्लेन ऑफ हाँ सिमेट्री वही नहीं वही बता रहा हूँ। अच्छा, आप इस प्लेन पे या इस प्लेन पे करके आप प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ सकते हो, और ऐसे प्लेन पे प्लेन ऑफ सिमेट्रीज नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो एग्जैक्टली मिरर पोजीशंस पे नहीं आएंगे। सो हेंस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। गॉट इट? एंड फाइनली आई थिंक दैट्स इट, राइट? सारे केसेस, हाँ सर हो गया। राइट। सो अभी का आते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो एक ही होगा, यहाँ पर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पे ऑप्टिकल होगा, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो एक ही होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ही है, यहाँ पे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब दो होगा। क्लियर? सो कितने हो गए टोटल? 7, करेक्ट सर। क्लियर एवरीबॉडी? सो थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा ऐसे केसेस को, बट अगर इतना कर लोगे, मतलब इतने ऐसे वाले केसेस एक दो भी करोगे तो आई थिंक काफी क्लैरिटी आ जाएगा आपको। सो आई थिंक 4 लिगेंड्स में किसी को डाउट है अभी? ना। Let us see about 6 ligand cases. The coordination number is 6. If the coordination number is 6, मतलब टेट्राहेड्रल है, ओके। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेट्राहेड्रल में आपका अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर होना चाहिए। सर ऑक्टाहेड्रल ना, सॉरी ऑक्टाहेड्रल में आपका अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर होना चाहिए। तो एक मिनट, मैं थोड़ा सा वीडियो का सेटिंग्स चेंज करता हूँ। Now there is no filter. Yeah.
लुक एट दिस, सबको ये दिख रहा है ये स्क्वायर प्लेनर है, ये सैमसंग का सीडी रोम है, सबको दिख रहा है? Yes. आपके जमाने में ये एग्जिस्ट नहीं करता अभी मेरे टाइम का ही। सो दिस इज अ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ बेटा, अभी ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, सो अगर मैंने कोई यहां पर एक ग्रुप ऐसे लगा दिया, ठीक है, सबको दिख रहा है ना, ऐसे मैंने ग्रुप लगा दिया, तो ये जो ऊपर टिप ऑफ दिस पेन डिस्टेंस टुवर्ड्स दिस डिस्टेंस, यहां पर कोई भी वर्टाइसेस पे डिस्टेंस, ठीक है, यहां से देखना, ये टिप से लेकर ये टिप से यहां तक का डिस्टेंस, और ये टिप से यहां तक का डिस्टेंस, ये टिप से यहां तक का डिस्टेंस, और यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं? यस सर, सेम होगा। आई थिंक सबको क्लियर है, राइट? द डिस्टेंस विल बी सेम, इसमें किसी को डाउट है? नहीं, No. वेरी गुड। अभी ये डिस्टेंस जो हमने सेम माना है, लेट अस से उसका डिस्टेंस x है, ठीक है बेटा, उसका डिस्टेंस x है, तो बताओ ये जो सेंटर से, ये जहां पे सेंटर से सैमसंग वाला सेंटर पॉइंट से ये टिप तक का डिस्टेंस कितना रहेगा? x/√2। क्यों? देखो यहां से यहां तक ये कैसे फॉर्म हो रहा है, ये वाला डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपने बोला x है, ये डिस्टेंस भी x अच्छा है, ये वाला x है, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला ये डिस्टेंस कितना होगा? x/√2 होगा ये। क्यों? x into √2। अच्छा ये वाला डिस्टेंस, एक सेकंड सर, फिर से देखो, सर फिर से ऊपर टिप से कॉर्नर तक का देखो। x बोल रहे हो ना? टिप से कॉर्नर तक का मैंने x लिया है, हाँ ये टिप से ये कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर तक का x है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं दो कॉर्नर का डिस्टेंस कितना होगा? x ही होगा, x ही होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हम लोग दिमाग में हमेशा ये बिठा के, जो हम लोग सिर्फ रेगुलर ऑक्टाहेड्रन की बातें हो रही है, ओके? नो ईशान, इज दैट क्लियर नाउ? आई एम सेइंग this distance from here at center, from this point of the Samsung, at this from S onwards till this point, यहां तक का पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये सेंटर से जितना डिस्टेंस आप करोगे, करेक्ट, इफ दिस डिस्टेंस, इफ यू लुक एट इट, यहां से यहां तक अगर x डिस्टेंस है, ठीक है, और सॉरी यहां से ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में जितना x डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस यहां पर रहेगा, उतना ही डिस्टेंस यहां पर रहेगा, ऐसे ये टिप से लेकर इधर तक, ये वाला, ये वाला, ये वाला, राइट? या गुड। सो सेम इज द केस विद बॉटम आल्सो, बॉटम से भी ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डिस्टेंस सेम है, करेक्ट? तो अब ये बताओ मुझे, कोई ग्रुप यहां पर रह के इधर रहना, इमेजिन करो ये टिप के ऊपर एक ग्रुप बैठा है, और ये वाले वर्टाइसेस, ये कॉर्नर वाले वर्टाइसेस पे एक बैठा है, ये दोनों, करेक्ट? अच्छा ये दोनों को इधर बिठाऊं या ये दोनों वर्टाइसेस पे बिठाऊं, इसमें कोई फर्क पड़ेगा डिस्टेंस पे? फिर से सुनो, ये कॉर्नर पे, ये टिप पे, और ये वाले वर्टाइसेस के एंड पे, ठीक है, यहां पर दोनों ग्रुप को बिठाया, एक ग्रुप इधर बैठा है, एक ग्रुप इधर बैठा है, ए एंड बी है। अच्छा ए एंड बी को मैं इधर बिठाऊं या ए एंड बी को मैं ऐसे बिठा दूं, ए और बी, इनमें कोई डिस्टेंस का फर्क आ रहा है? नहीं सर। नहीं, बस ये दिमाग में याद रखना है अभी आपको सब, ठीक है, कि आप जब तक ये ऊपर वाला ग्रुप, यहां से इन चारों का डिस्टेंस इक्वल है और उन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस सेम ही है, ठीक है, तो इवन इफ यू पुट टू ग्रुप्स हियर लाइक दिस, or whether you put the two groups here like this, they are always going to be at equal distance. These two distances are equal. Clear? सर तो लाइक जब तक अपोजिट ना करे तब तक पोजीशंस का फर्क नहीं होगा ना? नहीं, कोई पोजीशन का फर्क नहीं होगा, ओके? यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है, तो अभी ये देखो, बिफोर गोइंग फर्दर इनटू द डिटेल, मैं फिर से एक बार पिक्टोरियली बता रहा हूँ, देखिए। क्या बेटा? सर आप एक बार ऑक्टाहेड्रल बता सकते हैं कैसा होता है? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है मतलब। हाँ हाँ, डोंट वरी, आज सब कुछ क्लियर करके जाएंगे, ओके? देखो तानिश, ये दिख रहा है ना, ये क्या बेटा? स्क्वायर प्लेन है, इसको समझ पा रहे हो ना? ये स्क्वायर प्लेन है, राइट? यस सर। अच्छा, अगर मैं इस सेंटर ऑफ पॉइंट से ऊपर की तरफ एक ऐसे लगा दूं, ठीक है,
और मैं कह रहा हूं ये वाला अगर x डिस्टेंस है, ठीक है, करेक्ट, यहां से सॉरी ये वाला अगर x डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये वाला x डिस्टेंस है, तो ये भी x डिस्टेंस होगा बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। करेक्ट बेटा? ओके, ये हाँ पॉइंट सर, क्लियर? यही कंफ्यूजन। हाँ, यही सेम चीज आपको नीचे भी इमेजिन करना है अभी, राइट? ऐसे रखा मैंने। अब यहां से ये इधर से ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये तीनों सेम डिस्टेंस पे है, सारे के सारे ग्रुप्स। ओके, सो कैन आई से दैट ए बी सी ऐसे लिखूं, ठीक है, या ए बी और सी ऐसे लिखूं, करेक्ट? सॉरी, यहां पे नहीं, ए इधर नीचे, ये दोनों में तो कोई फर्क नहीं है ना, दोनों सेम ही है, सब लोग को दिख रहा है, क्योंकि यहां से यहां पे डिस्टेंस उतना ही है ए और बी के बीच में, और ए और सी के बीच में भी डिस्टेंस उतना ही है। यहाँ पर ए और बी के बीच बीच में डिस्टेंस उतना ही है, ए और सी के बीच में डिस्टेंस उतना ही है। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। वेरी गुड। अब ये एक केस हो गया, दूसरा केस देखो। सपोज यहां पर B और यहां पर B है, ठीक है, और एक बार यहां पर B है और यहां पर B है, इन दोनों में कोई फर्क है? डिस्टेंस, No, ओनली no, डिस्टेंस। sir. जब तक तुम्हारा डिस्टेंस का आइडिया क्लियर नहीं होगा, आप फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे। इसके लिए पहले मैं सबको एक पेज पे लेके आ रहा हूँ। सो डिस्टेंस में कोई फर्क है इसमें? नहीं है, सबको क्लियर है, राइट? नेक्स्ट लास्ट थिंग, सपोज यहां पर B है, यहां पर B है, ठीक है, और नाउ आई एम सेइंग यहां पर B है और यहां पर B है, इन दोनों में डिस्टेंस में कोई फर्क है? यहां से है ना सर? कुछ x डिस्टेंस है बेटा, यहां से यहाँ पे कितना डिस्टेंस होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? नहीं, x से ज्यादा होगा सर। नो, सेम होगा, देखो क्यों? अरे हाँ हाँ, सेम उधर से उधर तक का x लिया, ठीक है। हाँ देखो, अभी देखो, पहले प्लेन ऐसे था, B यहां पर है, दोनों मेरे फिंगर्स दिख रहे सबको, ये दोनों टिप्स पे B है, करेक्ट? ये प्लेन पे ही है ना, प्लेन पे देखो, सब लोग को दिख रहा है ना, ट्रांसपोजिशन पे ये दोनों B ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको मैं ऐसे कर रहा हूं, उतना ही ना, उसको मैं इसको टिप लेके आ रहा हूं अभी ऊपर, ये टॉप एंड बॉटम हो गया, अभी उतना ही किया मैंने, तो कोई डिस्टेंस में चेंज किया मैंने? वो सेम मॉलिक्यूल को मैं ऐसे घुमा के रखा है, बस उतना ही। क्लियर बेटा? सर, हाँ बेटा। तो मतलब एक क्लैरिफाई करना था, एक्सेप्ट दैट स्क्वायर का डायगोनल √2 वाला टर्म कहाँ पे भी नहीं आएगा, राइट? सब x x x ही डिस्टेंस है। नो नो, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट वरीड अबाउट, सी आई एम नॉट वरीड अबाउट डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस पॉइंट, ये पॉइंट्स पे मैं वरी नहीं कर रहा हूं, ठीक है? मेरा वरी ये है क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस डिफाइन करता है, राइट? हाँ सर। इसके लिए हम लोग डिस्कशन पूरा ग्रुप्स के बीच में कर रहे हैं, ओके? सेंटर से कितनी दूरी पर है वो डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, यस। ठीक है? सो आई थिंक ये समझ में आया ना, दीज टू आर सेम, वन एंड द सेम, these two are same, okay, these two are same, similarly these two are same, correct? correct. So अभी मैं लिखते जाऊंगा फटाफट, आपको कहीं पे रुका कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप रोकोगे मुझे। फर्स्ट केस MA6 octahedral, so we can expect that we should have M A A A A and A ऐसे। अभी आप किसी दोनों को कहीं पर भी एक्सचेंज कर दो, कोई डिस्टेंस का चेंज नहीं आ रहा है, एंड मोर ओवर दिस इटसेल्फ इज सर्विंग एज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री फॉर अबव एंड बिलो A। एक ऊपर और नीचे वाले A के लिए एक स्लाइस की तरह आप काट रहे हो बीच में से, सो देयरफॉर नो ऑप्टिकल आइसोमर्स एट ऑल, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नो, ऑप्टिकल आइसोमर्स नो फॉर दिस केस, ओके? नेक्स्ट MA5B, सो MA5B ऑल्सो, ये जो इजी वाले में फटाफट लिखते जा रहा हूं, किसी को कोई डाउट है तो मुझे रोकना। सो इफ इट ऑल आई पुट B हियर, सो स्टिल देयर इज नो geometrical isomers, no optical isomers in this case.
next M A4B2. If it is M A4B2, so let us see. In case now, if at all I write BB here, in case if at all I write B and B here, this will be trans. Okay, and similarly, in case if at all I take the same structure and just change the position of A and B here, so let us put A here and B here. Now it will be cis. This will be cis and this will be trans. Can anybody say इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है cis और trans के अलावा? नहीं And नहीं. क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्रीज दोनों केसेस में है या किसी में नहीं है? ऐसा कोई केस है? दोनों में सर. वेरी गुड. सबको दिख रहा है ना? एवरीबडी शुड आंसर. ओनली वन और टू आर आंसरिंग. एवरीवन. यस. राइट. देखो ये वाला प्लेन ऑफ, ये पूरा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है. ऊपर बी और नीचे वाले बी को डिवाइड कर रहा है. सिमिलरली यहाँ पे कैसे दिख रहा है बेटा? देखो इसको प्लेन बना सकता हूं ना मैं. ये प्लेन बन गया, ऊपर ए नीचे ए, दोनों को डिवाइड किया. ठीक है. या मैं इनके बीच में से भी तो प्लेन बना सकता हूँ, ये भी डिवाइड कर सकता है. ठीक. सो देयर आर मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज दैट वे. सर. हाँ बेटा. सर बट यहाँ पे डिस्टेंसेस कैसे वेरी कर रहे हैं? यहाँ पे देखना, ये बी और बी के बीच में डिस्टेंस डायगोनल है. यहाँ पर बी और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है? सिस टाइप का है ना. देखो ये वाला, यहाँ पर ये दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस सेम ही तो है. बराबर. हाँ मतलब एक में x है, दूसरे में √2x है. यस यस करेक्ट. इसमें अच्छा, √2x करेक्ट. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस. क्लियर? यस सर. Clear beta? Right. Next, if you see for the fourth case, M A3B3. अब ये मैं थोड़ा बताऊंगा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना. M A3B3 कैसे है? M A3B3 में there are two things which we can imagine. One, B B B on the same side like this. B B B इस तरह से है. एक बार हो सकता है B B B इधर आ जाए. So instead of this, B B B is here and A A A are this way. Okay. Now how we can imagine this? ध्यान से देखो. That it could be a plane. It could be a face of an octahedron here, है ना? ये एक face of the octahedron पे तीनों B एक जगह पे दिख रहा है. Similarly, this could be a face of an octahedron bottom side. Correct? So ऐसे दिख रहा है ना? This is also a face of an octahedron. So on one face of the octahedron, ऐसे ऊपर की तरफ देखो, ये तीनों ऐसे मिला के यहाँ पर ये फेस है. इस फेस के ऊपर देखो, यहां से मैं ऐसे ले रहा हूं, ऐसे वाला फेस, जो ये वाला फेस ऐसे. करेक्ट. ऐसा वाला फेस देखो. करेक्ट. तो ऐसे वाले फेस सेंटर तक अब देखोगे तो बी 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 है. ऐसा एक फेस पे बी 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 है, वैसे नीचे इस तरफ वाले फेस पे ए ए ए है. करेक्ट. यहाँ पर ए ए ए है. तो अभी बताओ इसमें हम लोग को, इसको अगर इससे कंपेयर करूंगा तो यहां पर कैसे दिख रहा है? इट इज लाइक बी बी बी. ये कोई फेस नहीं है, वो सेंटर से ट्रैवल करते हुए जा रहा है, ऐसे सेंटर से जा रहा है. तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे बी 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 सारे इक्वल डिस्टेंस पे है, बट यहाँ पे दो बी, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, बट ये दोनों के बीच में डिस्टेंस ट्रांस हो गया, मतलब ज्यादा. तो ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है. एंड दे आर termed as, because these are forming on a face, we call it as facial isomer. Just like cis, इसका स्पेशल नाम है facial isomer. And similarly, it is like cutting through the median के बीच में से कट हो रहा है. That is why it is called as meridional. Or in general terms, we call it as mer and fac. So we have fac and mer isomers. Cis and trans की तरह fac and mer कहेंगे इसको. So there are two geometrical for sure. Correct? और अब इसको किधर भी घुमाओ ना, कोई भी परम्यूटेशन में करने की कोशिश करो, फिर से आपको सिस ही मिलेगा या तो ट्रांस, मतलब या तो वो आपको फैक मिलेगा या तो मर मिलेगा. ओके. यू कांट चेंज एनीथिंग मोर देन दिस टू. आई होप ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद फैक एंड मर. सर आपने जो वो सेम डिस्टेंसेस वाला समझाया था फर्स्ट, एक बार वो दिखा सकते हो वो? हाँ बेटा देखो. हाँ सर, ओके, समझ गया. मैंने सबसे पहले फेशियली समझा था इसके लिए.
वो फेशियल ही था सबसे पहले भी लिखा है। देखो ये फेशियल है ना, ये भी यस ठीक है। अब यहाँ पर सबसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत आती है प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड करने के लिए। देखो फर्स्ट केस में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड करना काफी इजी, इन चारों को मैं एक प्लेन बना दूं तो ऊपर भी नीचे भी कंफर्टेबली हम लोग को दिख रहा है कि ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, तो इसमें तो कोई ऑप्टिकल आइसोमर होने के चांसेस नहीं है। फेशियल में चेक करो, फेशियल में है यस सर सॉरी, फेशियल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अच्छा बताओ जल्दी, फेशियल, हाँ सर, does facial has optical isomers or plane of symmetry? सर it is plane of symmetry. Arno, how did you see that? Sir, it can go from 1B to and 1A. 1B to 1A. Like the top right corner B to the bottom left corner A. Here, like this, No, the other A. like this. Yes. वेरी गुड। सो ऐसे अगर मैं प्लेन बनाऊंगा तो ये ए सेम आ रहा है, ये बी सेम आ रहा है एज ए मिरर। वेरी गुड। सो यस अथर, वेरी गुड बेटा, राइट। यहां से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है जो यूजुअली हम लोग को दिखता नहीं है जल्दी, ध्यान से। ओके, सो ए बी। सो नो देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री इन बोथ ऑफ देम। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे मार्क कर रहे हो। देखो पोजीशंस थोड़ा सा इमेजिन करना है चैतन्य। अब यहाँ पर इस सीडी रोम पे ये दोनों तरफ ए है, ये दोनों तरफ बी बी है, इतना इमेजिन हुआ बेटा, ए एंड बी बी, क्लियर? और ऊपर बी है, नीचे ए है। ओके चैतन्य, विथ मी ऑन दिस? सर एक मिनट रुको सर। हाँ सर, यस सर, समझा। देखो ए बी बी, ए अप एंड बी डाउन, करेक्ट? नाउ स्लाइस लाइक दिस, कैन यू स्लाइस लाइक दिस? इस ये एक प्लेन बना दोगे तो ए बी बी मिरर इमेजेस बन रहे। और ये जो ऊपर ए और नीचे वाला बी है, ऊपर ए और नीचे वाला बी है, वो इसी प्लेन पे तो है जहां से मैं स्लाइस कर रहा हूं, ऐसे स्लाइस कर रहा हूं। चैतन्य, क्लियर ऑन दैट? यस सर। अथर मर इज लाइक दिस बेटा, यहां पर बी है, अथर देखना बी है, ऊपर भी है और नीचे भी है, ऐसे ऐसे जाना चाहिए बीच में से। सो ट्रायगोनल इज फॉर्मिंग फ्रॉम द मेरिडियन, करेक्ट? ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है फ्रॉम द मेरिडियन, उसको इसके लिए कहते हैं मेरिडोनियल। अथर क्लियर? सर हाँ बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ही है ना फिर? प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ही है, एक ही चाहिए ना Okay, हमको, sir. मिनिमम एक हाँ चाहिए, सर। right? So I hope all of you are clear with FAC and MER isomers. Yeah. So only 2 GIs will be observed here, so not more. Next, fifth case. मैं पहले सारे वो केसेस ले रहा हूं जो जेई में मोस्ट आस्क्ड है और यही पूछा गया है ओवर एंड ओवर द इयर्स। ओके, सो पहले वही करेंगे, उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस इन केस इफ यू नीडेड एक्स्ट्रा। MA2 B2 C2 वेरी 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 यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, इसको कैसे करना चाहिए? देखो इसका एक एल्गोरिदम है कि पहले यू टेक मेटल, पुट ऑल 6 ग्रुप्स एंड नाउ फर्स्ट सारों को सिस में लगा दो। ए भी सिस है, बी भी सिस है, सी भी सिस है, ठीक है? ऑल सिस, ठीक है? नाउ पुट ऑल ऑफ देम एज ट्रांस, ठीक है? नाउ वी विल पुट ऑल ऑफ देम बीइंग ट्रांस। सो हाउ डू आई पुट ट्रांस हियर नाउ? ए ट्रांस, A trans, CC trans and BB trans। सारे एक दूसरे के ट्रांस है, ऑल सिस ऑल ट्रांस बन गए। अभी ऑल सिस ऑल ट्रांस के बाद नेक्स्ट 3 केसेस, करेक्ट? नाउ व्हाट यू डू, यू विल मेक ट्रांस विथ A, ट्रांस विथ B एंड ट्रांस विथ C, दैट्स इट।
सो एक बार ये देखो ए और ए ट्रांस हो गए यहाँ पर, ठीक है, तो बाकी दोनों को सिस कर दो. सो सी हियर एंड बी हियर. सो सी सी सिस, बी बी सिस. Similarly, now you can make, okay, BB trans and CC cis, AA cis. Similarly, you can make CC trans and AA cis and BB cis. So AA cis है, BB cis है. हमेशा ना ये 5 प्राइम बनते हैं, मतलब मिनिमम 5 will always come whenever you have A2 B2 kind, or when you group 2 to group. Whenever you take 2 as a group, हमको मिनिमम ये 5 बनते हैं. I think all of you clear with it. So this is all cis, all trans, and one trans each. इसके अलावा आप कुछ भी करने जाओ फिर से रिपीट होगा. So structurally you will only get these 5. So tell me how many geometrical isomers here? 5 geometrical isomers, beta. We have 5 geometrical isomers. सर हाँ आप एक बार हाँ पांचों structure- तनिष बोलो बेटा. हाँ सर वो ऑल 5 स्ट्रक्चर्स देखने दीजिए. ओके ओके, देखो एक बार. आगे बढ़े. यस सर. चलो सर अभी वो सी होना चाहिए ना, लास्ट फिफ्थ हाँ आइसोमर. सी सॉरी सी. अच्छा, नाउ वी आर, हाँ चेंज इट आर राइट. नाउ यू कैन सी दिस इज वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री. सो नीचे के 3 तो कैंसिल ऑप्टिकल के लिए, ये ऑप्टिकल नहीं शो कर सकते. सो और वरी इज ओनली अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड केस. द ऑल ट्रांस विल ऑलवेज गेट कैंसल्ड बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री तो उसमें रहेगा ही रहेगा. नाउ लेट अस सी ऑल सिस. ऑल सिस में हो सकता है. कैन यू गेट इन ऑल सिस? कैन वी गेट एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दैट? नहीं. ऑल सिस वापस समझाओ कि कैसा है यहाँ पे, नहीं समझ में आ रहा सर. ऑल सिस में your question was all cis or all trans beta? So all cis में why is there no plane of symmetry? I did not get that. अच्छा, okay okay. See, even if you take this plane ना, ऐसा प्लेन लोगे तो भी आपको यहाँ पर C और B मिल रहा है डिवाइड करने के लिए. ऐसा प्लेन लोगे आपको A और B मिल रहा है डिवाइड करने के लिए. या आप बीच में से काटो ऐसे, इन चारों को ऐसे लेकर ऐसे स्लाइस काटो, करेक्ट. तो यहाँ पर C मिल रहा है बट इधर B भी मिल रहा है, A एंड B मिल रहा है. करेक्ट बेटा. तो आप किसी भी एंगल से काटो तो आपको दोनों तरफ सेम मिरर इमेजेस नहीं मिल रहे हैं. ओके. Yes sir. ठीक है सर. Therefore I can say now all cis will show optical isomers as there is no plane of symmetry. Therefore, if the question is asked total number of stereoisomers कितने हो जाएंगे? 6. If the question is asked how many optical isomers? 1 2. 2 सॉरी. Okay. अगर क्वेश्चन सिर्फ ऑप्टिकल पूछा है, ऑप्टिकल isomers, so you would say answer is 2. If you ask total number of geometrical isomers, answer is 5. Here everybody? यस सर. वेरी गुड. ठीक है ठीक है. अच्छा, इसी को देख के हम लोग ये रेप्लिकेट कर सकते हैं ना, दैट इन केस इफ यू हैव 6 1 M A B C D E F, अगर मैं देखूंगा सारे के सारे डिफरेंट है, ठीक है. तो बेसिकली आई हैव 2 पोजीशंस. इसको एज इफ मैं सोच सकता हूं कि इसको एज ए मैं व्हाट आई कैन से पेयर्स A B C D E F, इन तीनों को एक पेयर की तरह बना दूं और तीनों को ऐसे घुमाऊं बार बार, तो मुझे ऐसे 3 सेट आएंगे, है ना. एक बार A B C D E F, एक बार A C B D मे बी D F, समथिंग लाइक दैट. ऐसे 3 सेट आएंगे. अब 3 सेट को ऐसे 5 बार घुमाना है, टोटल 15 आएंगे.
करेक्ट, टोटल 15 आएंगे। ऐसे ऐसे इमेजिन करना मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो चीजें करेंगे यहाँ पे। ए बी सी डी ई एफ, मतलब हमको पता है कि 6C2 पोजीशंस में हमको बिठाना है, राइट। 6 है जिनको हर बार 2 पोजीशंस में एक्सचेंज करके बिठाना है, ऐसे, करेक्ट। These are the total number of geometrical, these are the total number of structural isomers I can imagine, correct। और उनके हर बार पोजीशन चेंज कर दो तो चेंज आएंगे। So therefore I can say there are 6C2 geometrical isomers and stereoisomers, because every geometrical isomers will not have any plane of symmetry now, so it will be 6C2 into 2. So here the answer is 15, here the answer is 30. Okay, ये जो बाइनोमियल थ्योरम मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ पा रहे हैं उनके लिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है परम्यूटेशन कैसे करने का, देखो ये ऊपर के 5 तो मैंने बताया ना बेटा, ग्रुप्स ज्यादा करके। तेज जा रहे हो, थोड़ा सा स्लो जा सकते हो क्या? ओके, लिसन, सपोज हाउ डू वी पुट 6C2 का मतलब क्या होता है चैतन्य? We have 6 positions, isn't 6 positions, and I'm trying to see that there are 2 ways I can change the position of any 2 species, right? Chaitanya, is that what I mean, right? AB, जैसे AB ऐसे रखा है तो ये सिस हो गया, ऑपोजिट रखा है तो ट्रांस हो गया। सॉरी, नहीं समझ में आया, प्लीज आई एम सो सॉरी सर, मुझे नहीं नो प्रॉब्लम प्लीज, सॉरी वॉरी मत बोलो, मैं तुमको समझाने के लिए बैठा हूँ। कि जितना मेरे से हो सकता है मैं फाइट मारूंगा, बाकी लोग पार्टिसिपेट करो, किसी को और इजी लग रहा है तो प्लीज मुझे भी हेल्प करो, ताकि सब लोग इजीली समझ पाए। देखो देखो बेटा, टोटल वी हैव 6 पोजीशंस। चैतन्य, इज दैट क्लियर बेटा? 6 पोजीशंस है। What are the 2 positions by which we can change them into geometrical isomers? Either you put 2 groups this way, which I'll call it as cis, or you put this way, which I call it as trans, है ना? So there are 2 combinations by which you can make 6 positions to distribute, है ना? 6 molecules, 6 positions है बेटा, उसमें there are 2 ways I can combine. One is this way, one is this way, one is cis way, one is trans way. Chaitanya, do you agree with that? Right? So there are 6 combinations. How many I can make? 2. So I can simply write as 6C2. Those are the total number of combinations which I can get. So 15 such combinations I can get. Okay. And every molecule which I get, so every molecule which I get, now because A, B, C, D, E, F, everything is different, तो इसमें कोई भी plane of symmetry कहीं से भी नहीं आएगा ना, तो इसका mirror image हमेशा non superimposable होगा, which means I'll get 2 optical isomers. So for all those 15 multiplied by 2, so how many stereoisomers you will get? 30. Is it making sense, everybody? Yes sir. Right. The other way around, ये पहला वे है, ये मैथमेटिकल वे है, मतलब आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आता है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। सेकेंड थिंग, अनदर वे, तनिष अभी देखना बेटा, क्या ये मैंने जो 5 लिखे है ना, करेक्ट, ये जो 5 लिखे ऐसे मैं हर बार कॉम्बिनेशन चेंज करके लिख सकता हूं ना। पहले मैं ये समझा कि ए और ए, जैसे ये लिखा मैंने, इमेजिन करो ऐसे कॉम्बिनेशंस मैंने ऐसे बनाया बेटा, एम ए बी को एक सेट बनाया, बी सी को एक सेट बनाया, ई एफ को एक सेट बनाया, ये सेट नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट ए सी को एक सेट बनाया, सॉरी ये बी डी सी डी है, सी डी, ए सी को एक सेट बनाया, बी डी को एक सेट बनाया, ओके ना, बी डी नहीं, बी ई को एक सेट बनाया, और एक डी एफ को एक सेट बनाया, ये एक सेट बन गया। तीसरा सेट एम ए डी को एक सेट बनाया, ओके, सी एफ को एक सेट बनाया, और सी एफ को नहीं, सीई को, सी को एक सेट बनाया, और बी एफ को एक सेट बनाया, करेक्ट। देखो तीनों सेट बन गए, और कुछ सेट बनाने जाओगे तो रिपीट होगा, आप करके देखो चाहिए तो। तनिष
अंडरस्टूड बेटा? तो समझ में आ गया, यस सर अनिश यस बेटा। सर AF AE ये सब नहीं बनेगा सर? एएफ तो दूसरा कहीं ना कहीं रिपीट हो जाएगा। देखो अगर एएफ बनाने अच्छा। जाओगे तो बाकी का रिपीट हो जाएगा ना, सेम आ जाएगा। मतलब कोई सीडी बन जाएगा या कोई बीई बन जाएगा जो ऑलरेडी बना चुके हो आप। डिस्टिंक्ट सेट तो ये तीन ही बनेंगे ना। ओके, तो मतलब आप कह रहे हो कि AE रखा तो सॉरी लाइक AF रखा तो BCDE बचा तो BE होगा या BD होगा, और हाँ तो BE वो या ऑलरेडी आ BD चुका है ना। इंक्लूडेड है? हाँ 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 ओके। बराबर। हाँ। अच्छा अभी मैंने क्या ट्रिक बनाया, इसके 5 बन रहे थे, इसके 5 बन रहे थे, इसके 5 बन रहे थे, है ना। एक ऑलसिस, एक ऑल ट्रांस और ट्रांस ट्रांस ट्रांस, ऑलसिस ऑल ट्रांस 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 ट्रांस, ऑलसिस ऑल ट्रांस 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 ट्रांस, बराबर। कितने बन गए टोटल? 15 हो गए ना। आ गया? रमेश नी डाउट? और हाँ बोलो बोलो। सर बट एक इंडिविजुअल केस को हमने वो पिछले वाले केस से कैसे रिलेट किया, वो नहीं समझा। देखो इसमें हमने सेट्स लिए थे ना, A2 B2 C2, है ना। तो इमेजिन करो ये भी जैसे हाँ। A2 है, B2 है, C2 है। A2 B2 C2, A2 B2 C2, तो इसके कितने आएंगे? 5 5 5 आएंगे ना। ओके वैसे, ओके सर, सेट्स में ही लिया, ओके। हाँ हाँ सेट्स में लिया समझा ना, समझा। तो 15 आ गए ना बेटा। यस सर, 5 into 3। तो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ ही गए। तो इसमें आपको देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि डिस्टिंक्टली हम लोग कितने यूनिट्स बना सकते हैं सेट का। इसके लिए हर क्वेश्चन को, जिसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है, सिर्फ यही सेट में सोचो। तो ये सेट अच्छे से प्रैक्टिस करो बस, क्योंकि आप कोई भी अभी कोई भी कर सकते हो भैया। एक बार ये कर लोगे ना तो बाकी सारे आ जाएंगे। कि बार बार कि कुछ लोगों ये वाला सेक्शन पी एंड सी किसी का स्ट्रांग नहीं होता है किसी स्टूडेंट का, तो उनको मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आप ये एक सेट कर लोगे ना, ये एल्गोरिदम समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो अभी आप। ठीक है, तो अभी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ये वाले केसेस कि आपको ये करने हैं। कौन कौन से? एम ए बी सी डी E2, ठीक है, ए बी सी डी E2, एम ए बी C2 D2, एम A3 B2 C, एम A3 BCD, एम एम A2 BC, एम A2 ये लिख दिया, नहीं सॉरी सेम रिपीट हो रहा है। एम B3 ना ना, एम BCD F नहीं, सारे आ गए, सारे केसेस आ गए। एम ABCD2 ABC2D2 AB3, हाँ आ गए। ये चारों आप करोगे बेटा, ये इसको प्रैक्टिस करके मुझे बताओगे बाद में। सर एक डाउट है। हाँ सर हम लोग ने दो दो कंबाइन किया, यस तो ऐसे हम लोग को मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं 6C2, यस और एक एक उसमें हम लोग को मिल रहा है 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यस। सो टोटल 6C2 into 5 नहीं होना चाहिए नो नो ज्योमेट्रिकल? नो, 6C2 को ही मैं 5 5 5 में डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ। 6C2 इज ओपन, लाइक ओपन कंडीशन है, 6 पोजीशन है, 2 में मैं डिवाइड कर सकता हूँ, दैट इज ओपन कंडीशन। ओके अच्छा, तो 6C2 में 5 केसेस आ गए। यस। अच्छा ओके। सो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस 4 केसेस, तो आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगा। आइदर यू यूज परम्यूटेशंस और यू विल पुट दिस व्हाटएवर वी डिस्कस्ड, सेट्स में बनाओ और सॉल्व करो। नेक्स्ट, नाउ दिस इज 6th वन, नाउ 7th केस चेक करो बेटा। एम A4 B2 मैंने किया ना, एक मिनट, नहीं किया, हाँ नहीं कर दिया, A4 B2 कर दिया, राइट। नाउ लुक एट दिस, हमने A4 B2 किया है। अब इसमें नाउ आई एम स्लोली इंट्रोड्यूसिंग बाइडेंटेट्स बेटा। सो सपोज A थ्राइस, दिस इज अ बाइडेंटेट आई हैव। एक चीज याद है, बाइडेंटेट को हम लोग ट्रांस में कभी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, मतलब यू कैन नॉट हैव 180 डिग्रीज एंगल वाला केस, बस उसको ध्यान रखना। सो नाउ आई कैन पुट M
and I have A, 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 A and A and A. So ये ऐसे सिस की तरह ज्वाइन हो सकते हैं, बट कोई भी ट्रांस की तरह ज्वाइन नहीं हो सकता है. What I meant to say that we can't make something like this. ये ऐसे ज्वाइन करके ये ऐसे ज्वाइन नहीं हो सकता ना. This is not allowed. Correct? Now tell me, ये वाला फॉर्म है और कोई फॉर्म आप इमेजिन कर सकते हो? नहीं सर, सबसे नहीं ना, यही फॉर्म हो सकता है. मतलब इट इज लाइक ए सिस फॉर्म ओनली. दिस इज लाइक ए सिस फॉर्म ओनली. अच्छा, ये वर्डिंग एनसीईआरटी में यूज किया है, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ. वैसे सिस बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसे बोला गया कि सिस फॉर्म ओनली. सो इट इज हैविंग ओनली सिस फॉर्म. नाउ टेल मी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या बेटा? अगर आपको क्वेश्चन पूछा Ma3 has how many geometrical isomers, your answer should be 0, or there are no geometrical isomers, because it has only one form. But if the question is asked what are the total number of stereoisomers, now the answer is 2. Reason being, it would have no plane of symmetry whatsoever. इसमें plane of symmetry नहीं है. अब थोड़ा इमेजिनेशन को फिर से लेके आओ. देखो, इस CD-ROM पे A और A का कनेक्शन ऐसे लगा हुआ है. फर्स्ट A और A, ठीक है. तो इस तरफ से देखना, ऐसे A और A का कनेक्शन, ठीक है. और दूसरी तरफ है ऐसे A और A ऊपर, इधर से इधर कनेक्शन है, और नीचे इधर से इधर कनेक्शन है, ऐसे A और A, इस डायरेक्शन से नीचे तक. सो नो मैटर हाउ एवर यू कट इट नाउ, आपके पास कोई भी अगर स्क्वायर है तो उसको इमेजिन करके देखो, आप कैसे भी कट करोगे तो यू वोंट बी एबल टू गेट अ प्लेन बाय विच यू कैन मेक इट सिमेट्रिकल. ठीक है. द मैक्सिमम व्हाट वी थिंक, मैं बताता हूं आप थॉट कैसे आता है कि सर आप ऐसे कट कर दो बीच में से, है ना. ये थॉट आ सकता है कि सर आप ऐसे कट कर दो. तो फिर देखते हैं. देखो, अगर यहां पर A और A ऐसे है, इस तरह से A और A कनेक्टेड है, और उसको मैं स्लाइस कर रहा हूं बीच में से, ऐसे स्लाइस कर रहा हूं, ठीक है. तो ये वाला A और A तो कट हो रहा है, इसमें कोई इश्यू नहीं है. बट इश्यू किधर है? यहां पर एक A ऐसे आ रहा है, करेक्ट, जिसको कट कर रहा हूं तो A और A ऐसे आ रहा है, बट उसका मिरर ऐसे, इसका मिरर इमेज नहीं आ रहा, इधर ऐसे आ रहा है नीचे. तो ये दो तो मिरर इमेजेस नहीं हुए ना. एक ऐसे है और एक ऐसे है. So these are not mirror images of each other. So therefore, here you will एक साइड पे ऊपर है, एक साइड पे नीचे है. correct. एक साइड पे ऊपर से आ रहा है, एक साइड नीचे से आ रहा है. Okay. Yes. सर, तो हमें जब सिमेट्री देखना, हम लोग को ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी गिनना पड़ता है, एज इन द बॉन्ड. No. You will take everything as a unit. Okay, beta. Okay. Unless there is any special chiral center coming in between, till that time every bonds, lone pairs, everything you will take it as unit only. ठीक है. चलो, तो इसमें हो गए two geometrical two optical isomers. Next, 8th case, MAA twice B2, MAA twice B2. ये भी A2 B2 C2 की तरह सोचो. Got it? So I have M, I have B and B को मैं ट्रांस बना दूंगा फर्स्ट टाइम. तो मैं आराम से A और A सिस में मैं इसको जोड़ सकता हूँ. दो A और A इधर से ऐसे. This is the one. Second case is B and B I can put it as cis. Then I can have A and A as cis on this side, A and A as cis on this side. These two I can put. Can you imagine anything else? अब देखो, आप कहीं पे भी घुमाओगे फिर से B और B cis ही आ जाएंगे, या तो B और B trans ही आ जाएंगे. तो यही रिपीट हो जाएंगे. So structurally only these two are possible. And since B and B are on the opposite side, I can say it is trans, and here I can say it is cis. Correct? Trans में तो clearly दिख रहा है कि this is a plane of symmetry. This entire thing is a plane of symmetry where B and B are been divided. So hence यहाँ पर optical isomers नहीं होंगे. Second case, cis. इसमें होंगे क्या? इसमें कोई plane of symmetry है? In the cis case, no, right? इसमें plane of symmetry नहीं है. तो यहाँ पर two geometrical है, correct? And optical isomers exist करते हैं. So you here don't write 2, write it as +1.
+1 का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल भी शो कर रहा है एंड वन ऑफ देम इज शोइंग ऑप्टिकल आइसोमर्स. सो total stereo isomers are how many? Total stereo isomers are 3. So total stereo isomers are 3. If the question is asked number of geometrical isomers, answer is 2. Optical isomers, answer is 2, but stereo means 3. Everybody understood that? सर Yes, beta. सर थोड़ा सा आप क्लैरिफाई कर सकते हैं क्या कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब आता है सर? देखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स तब ढूंढना होता है तब मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. अगर मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, तो उसका मिरर इमेज आप जो लोगे वो हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा. मतलब वो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे. वो Okay. दोनों को आप कभी भी सबमर्ज या सुपर इम्पोज नहीं कर सकते. मतलब एक दूसरे में आप मिक्स नहीं कर सकते, ब्लेंड नहीं कर सकते मॉलिक्यूल्स को. ठीक है, हाँ सर. उनको कहेंगे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स. ठीक है बेटा. लाइक इस Okay, इसका अगर आपने मिरर इमेज लिया और वो मिरर इमेज को बिठाने की कोशिश की इस पे सिस के ऊपर, तो आपको कभी भी वो बैठेगा नहीं उसके ऊपर. ओके, सर सो पहले हमेशा ज्योमेट्रिकल देखिए ना, और हर एक ज्योमेट्रिकल के हमेशा स्टूडेंट में हमेशा फिर- यही बेस्ट होता है. पहले ज्योमेट्रिकल देख लो, क्योंकि मिनिमम ज्योमेट्रिकल तो एग्जिस्ट करने चाहिए जितने ज्योमेट्रिकल है. अगर ज्योमेट्रिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो ऑप्टिकल करना मुश्किल होगा. मतलब अनलाइक ओनली वन केस, ये वाला केस, ये एक ही केस है जहां पर ऑप्टिकल दिख रहा है, ज्योमेट्रिकल नहीं दिख रहा है. बट अदरवाइज सबसे पहले Yes, आप ज्योमेट्रिकल ही ढूंढोगे. I guess all of you understood that. सर ये केस में एक डाउट है, मतलब जो हम लोग ने सिस लिखा था हाँ बेटा. सर, उसमें हम लोग एक ए को प्लेन से बाहर एक्सियल पे डाल देते हैं बी पे. मतलब यहाँ पर हाँ नहीं नहीं, हम्म. वो जो प्लेनर प्लेनर ए है ना, हाँ ये वाला, हाँ उसको एक्सियल पे डालना है. उसको एक्सियल पे डालना है ऐसे. हाँ 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 ऐसे. चलो ठीक है, डाल एम. तो उसके केसेस नहीं बनेंगे. एक एक ऐसे बोल रहे हो ना? हाँ यस. ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर बाकी दो एक इधर रख रहे हो आप, वही सेम सेम. ऐसे या ऐसे, जो जैसे सेम है सेम ऐसे. हाँ हाँ ऐसे. बी और बी ये हो गया, तो ये तो ट्रांस ही बन गया ना, ये दोनों सेम हो गए. देखो फिर से, ओ ओ हाँ बराबर. यस. या तो सिस बनेगा या तो ट्रांस बनेगा, वो रिपीट ही होगा आप कुछ भी करने चाहो. ठीक है. Now can I say the same logic applies for M AA twice and BC? इसके लिए भी सब कुछ सेम है, तो इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है. जैसे हमने किया था इसका, ये बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट B और B होता था, यहाँ पर B और C है उतने. सो दिस इज C एंड C, दैट्स इट. बाकी कुछ केसेस में डिफरेंट नहीं. अभी तक जेई में, जेई एडवांस में एवरी ईयर आइदर 8th case have been asked, 9th case have been asked, or once in every 4 years this case have been asked. So only these 3 cases are most asked cases. Okay, तो ये तीनों सबको याद हो जाने चाहिए कि कितने सिस है, कितने ट्रांस है, कितने स्टीरियो है. Here everybody. Done? Right. Now look at this. Last case. This was once asked M A B thrice. It is like bidentate but 2 different cases. So it is similar to this one, right? ये बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही केस है जहां पर instead of all A's, now this time we have some B here. So यहाँ पर A भी लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मैं A भी लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं A भी लिख देता हूँ ऐसे. This is how you can have it, right? Now can we have anything else apart of this? Because trans वाला तो केस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसमें हम लोग सिस ट्रांस बना सकते हैं क्या, चेक करते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पर B और B ट्रांस है,
ए और बी ट्रांस है, करेक्ट, और ए बी ट्रांस है इधर, करेक्ट। क्या हम लोग इसमें कोई सिस ट्रांस बना सकते हैं? चेक करो। I'll try to change and see whether it will work out or not. यहाँ पर मैं बी रख दूंगा और यहाँ पर ए रख दूंगा, कुछ चेंज आया क्या? देखो, यहाँ पर बी और बी एक ट्रांस था, ए और एक ट्रांस था, ए बी ट्रांस था। अब देखते हैं, बी और बी ट्रांस है, ए बी ट्रांस है, और ए ट्रांस है, तो अभी भी तो सेम ही बन रहा है ना। एवरीबडी आर यू एबल टू सी दैट? सेम Yes, बन sir. रहा है। तो इसमें भी कितने फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगे? सिर्फ सिस फॉर्म ही एग्जिस्ट करेगा, इजंट इट? तो ये वाला सेम है, these two are same, one and the same. So therefore only cis form exists, so optical isomers now will also be 2. No geometrical isomers whatsoever. Done? Right. Okay. So few cases which I want you guys to try it is MAB twice B2, MAB B2 C2, MAB BC DE. No, sorry, CDEF. MAB CDEF. Okay. Same logic. 2 to 2 का आप ये बना दो, 2 2 and 2. If you just try to make it as groups and try to put it on paper, you'll be able to get the answers. That's it. Here everybody. बस इतने ही है बेटा आपको, as much as stereoisomers are concerned. Only these 10 cases what you need to learn it from 6 ligand system. Done? Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Right. Good. Last thing in this Sir? chapter. Yes. Sir, but एक थोड़ा पूछना था, ये केस में whenever we have to check if there is a plane of symmetry, then हम लोग diagonal के along काटने का ट्राई करेंगे, फिर ऐसा हाफ हाफ में Yes. काटने का पहले ट्राई तो ये करेंगे, प्लेन पे नहीं काटो, पहले ये प्लेन पे काटो, हाँ और एक बार वर्टिकल प्लेन पे काटो ऐसे। हाँ ये दोनों में कुछ नहीं दिख रहा है, तो ऐसा ये वाला वर्टिकल या हाँ। ऐसे डायगोनल। ओके ओके बस। सो यही एल्गोरिथम रखना, पहले ये, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा साइड में। ओके ओके एल्गोरिथम तो आ जाएगा। Let us see what is stability of complexes. This we have studied in ionic equilibrium. If you recall, I used to call it as Kf, which is the formation constant, also known as the stability constant. Here in this chapter we define it as beta. Okay, see, basically it is like this. If you have metal plus n number of ligands, okay, and it is in equilibrium to form MLN, a ligand form हो रहा है, so the K of formation will be equal to MLN, this complex का concentration divided by M concentration into L raised to power of N concentration. Okay, see, ligand formation is not simultaneous reaction. It is not like attack, सब कुछ organic में कुछ reactions होते हैं जहां पर attack भी remove भी सब simultaneously हो रहा है, like E2 mechanism, which is not what happens in complexes. beta, complexes is every one step each. मतलब पहले एक ligand जुड़ेगा, फिर दूसरा ligand जुड़ेगा, फिर तीसरा ligand जुड़ेगा, इस तरह से ligands जुड़ते जाते हैं. So there are multiple equilibriums existing, right? So for example, for this is the overall reaction. The first step or step 1 reaction for this would be metal plus one ligand forms ML, and we'll call this equilibrium constant as K1. Step 2, ML, which has formed, reacts with one more ligand to form this as ML2. This is K2. Got it? Step 3 will be ML2 plus L will form ML3, that is K3, and so on. Okay. अब ऐसे आप करते जाओगे तो क्या मिलेगा? ML n-1 plus L is giving MLN. This is Kn. This is step Kn. Okay. Now you can clearly make out कि ये सारे steps करने के बाद if I add them, they'll get ML plus N
M plus NL, M plus NL will be in equilibrium with MLN. So which is what I'll call it as beta. So beta is the overall reactions equilibrium constant. So which is equal to K1, K2, K3, and so on up to Kn. That is how we define it as beta. So if beta value is more, it means more stability, isn't it? क्योंकि KF का formation ज़्यादा है, इसका मतलब है ये इसका concentration ज़्यादा है, so reaction is more in the forward direction. So we can say if beta value is higher, more stable the complex is. More stable the complex. More stable the complex is. Okay. Got it. Next thing. See, every time when you are adding, correct? Every time when you are adding, first ligand formation ये काफी fast होगा. Second time थोड़ा सा slow. फिर ये और slow. फिर finally आते आते ये slow हो जाएगा. So every successive addition of ligand that will start decreasing the K value. Correct? So that is an important note. Every successive addition of ligand decreases the K value. This is the K value. So K1 is greater than, K2 is greater than, K3, and so on, Kn. Here, everyone. Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay. This is the last part of this chapter. थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्योंकि इसको जे एडवांस में पूछ चुका है. व्हाट आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स? सो आई जस्ट राइट डाउन दैट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. Right? Because there is always a issue with understanding the definition here. See, if any organic group is linked with metal through covalent bond or coordinate covalent bond, we call it as organometallic compounds. So organic compound or simply carbon, okay, connected with metals via covalent or coordinate covalent bond, then we call it as organometallic compounds. Okay. Suppose if you have any boron, silicon, germanium, arsenic, tellurium, okay, because you know that these are metalloid in nature, है ना? If you see it in periodic table, boron, silicon, tellurium, germanium, arsenic, इसको हम लोग metalloids की तरह use करते हैं. But if they are connected to any carbon or any alkyl group, we still consider it as organometallic complex. तो ये गलती मत करना, इसको भी choose करना. Okay? Right. So have you all understood what I said? Please include all the metalloid cases also. So that is an important part. ये usually गलती कर देते हैं. So organometallic compounds include metalloids also. Metalloids like boron, silicon, germanium, tellurium, and arsenic also. Okay. Yes. Right. Okay. So I'll write the examples. आपको हाँ या ना में आंसर देना है, बस उतना ही कि ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है या नहीं है. Okay. So examples: RLi, RMgX, correct? R2Zn, R2CD, okay, Al2Cl, CH thrice 6, okay, CH3
twice, silicon Cl twice, CH3 thrice, silicon Cl, Cr C6H6 twice, Fe C5H5 twice, ferrocene we used to call it. Okay, NiCO4 and R2CuLi, Gilman's reagent. Correct. And did I forget anything? Yeah, KPtCl6. Right? Sorry, not Cl6. PtCl3 and C2H4. Right. Like this. इसको कहते हैं Zeus salt. Zeus salt. Okay. Boron salicylate. That is benzene with COO minus and O minus twice. Boron नहीं, beryllium. Sorry, beryllium. Yes. Okay. Now, lastly, K3FeCN6. इसमें से ऐसा कोई है, मैंने मोस्टली सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ही लिखे हैं. All of these I have been some or the other time asked in JEE, either in mains or in advance. In any of these, ये सारे cases कभी ना कभी पूछे गए JEE में. So now tell me, out of this, is there any odd man out which is not an organometallic compound? सर CD वाला ना. CD, कैडमियम मेटल है बेटा. कैडमियम तो मस्त मेटल है. जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी. ऑर्गेनिक में काफी यूज करते हैं हम लोग. कार्बोनिल कंपाउंड्स, नाउ वी आर डूइंग इट. CD is used, R2CD. सर कोई तो है, उसे ढूंढना है, ऐसा कह रहे हैं. सर बेरिलियम वाला एक तो है. बस ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल है. Cyanides, बस. I don't know apparently what is the reason, but cyanides are not included as organometals. Cyanide, cyano group is always taken as inorganic group. It is not considered as an organic group. Okay. Rest all groups, even carbon monoxide CO is considered as organometallic group. Here everybody. सर हाँ बेटा. सर इससे थोड़ा सा रिलेटेड ही है. हाँ. वो एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में लाइक एकदम स्टार्टिंग में एक लिखा रहता है, देखो एक कंपाउंड को हीट करते हैं और शायद यूरिया बनता है, मतलब ऐसा कुछ तो है. हाँ. वो कोई तो कंपाउंड रहता है ना सर, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है और उसको हीट किया तो ऑर्गेनिक आता है, ऐसा कुछ तो यूरिया ही रहता है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. हाँ सर, व्हाई इज दैट सो? मतलब व्हाई इज सॉरी, यूरिया? कार्बन मोनोऑक्साइड ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. अमोनिया भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको अच्छा. दोनों को मिक्स करके हीट करने पर आपको यूरिया मिल रहा है. ओके. ओके एंड यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है. तो मतलब कार्बन रहता तो भी इनऑर्गेनिक का क्या ऐसा कुछ क्राइटेरिया है क्या? पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लिविंग सिस्टम के बेसिस पे डिवाइड किया गया था. जिस लिविंग सिस्टम्स में जो भी मॉलिक्यूल्स है जिनके वजह से सेल्स बढ़ते जाते हैं, सेल्स का ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, एंड दैट केमिकल इज अ रीजन वी यूज्ड टू कॉल देम एज ऑर्गेनिक. गॉट इट? एंड फॉर एग्जांपल जैसे रॉक है, करेक्ट? Rock is never growing on its own, right? But plants are growing. So all the material which is present in plants, all the chemicals present in plant, which is the reason for growing, we used to call it as organic. But all the chemical species which are present in rocks, correct? Calcium carbonate or phosphates, ये सारे के सारे जो rocks बने हैं, they are not growing anymore. So we used to call them as inorganic. That's how the basic distinction came. अच्छा, so okay, so even calcium carbonate, carbon ओके भी मतलब inorganic है. Yes, that is inorganic. Okay. And everybody, देखो uses का मैंने एक शीट बनाया, ये आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा. Got it? I'll include in the last what do you say, last page. Okay, so please read the uses once. Hemoglobin, B12, zinc plus. Okay, what is Wilkinson's catalyst? Got it? और उसके बाद है सिस्प्लैटिन, कैंसर को क्योर कैसे करता है, ये सब कुछ एनसीईआरटी में गिवन है. आई हैव पुट इट एज 10 पॉइंट्स. उसको एक बार रीड करना है उतने आपको, कौन सा मॉलिक्यूल किसके लिए यूज होता है. पर जेई मेंस, दैट्स इट.
Done? Everybody clear on this? Right. Now without any delay, let us start with nuclear chemistry part. So complex खत्म हो गया पूरा. Yes, beta. Done. Ari, I may extend for a half an hour. Actually, I'm supposed to go at 8 o'clock, but that plan got cancelled. Let's stay till some time. Is that okay? Arya? Okay. If anybody has any tuition, please let me know. At least I'll give some substantial amount of nuclear chemistry, then we can go ahead. Okay. We can stop. 1 minute. सर आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री से जैसे सर जो क्लास में पढ़ा